So, okay, we will start, right? Thank you for pointing that out as well. So, we're going to just start the session now. And the session is structured in such a manner that I have taken in all the doubts. जिसने भी Google form भरा था, तो उसको बहुत ही simple format में, because I think some of you are beginners, some of you have given mains, not just one, multiple mains. Let's say somebody is struck in certain scores. So it is mentioned in such a manner that if even if you're a beginner, you will get to learn a lot of, let's say, that how to approach the optional. Okay, असली में पढ़ाई करनी होती कैसे है, how to develop our understanding. And again, this is one subject. अगर you are able to understand it अच्छे से समझ पा रहे हो, तो marks लाना भी कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है. Okay, I have done it. A lot of people before me and after me have done it. ठीक है, low के marks आते हैं. Despite the fact you may be an engineer, you need not to be a political science master's or a PhD. ठीक है. This again I'm telling you because many of us have fears that is it only that the people who have a specialization do they get marks? Not necessarily. ठीक है. So that is not necessary. So what is the overview? हम basically बात करने वाले हैं नोट टेकिंग के बारे में. We'll talk about understanding. We'll talk about answer writing. कुछ लोगों ने बार बार मैसेज ये किया है कि how to research for the content available, right? So we will talk about all these dimensions one by one. Okay. सबसे पहली चीज ये है व्हेन वी टॉक अबाउट पॉलिटिकल साइंस. ओके, एंड दीज आर, ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखे ना इस पूरी स्लाइड में, जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे आप लोग के क्वेश्चंस हैं. ठीक है, तो यू मेड माय जॉब इजियर. आई जस्ट हैड टू सेग्रीगेट योर पॉइंट्स इनटू बेसिक थिंग्स. ओके, बट ऑल दीज थिंग्स दैट यू हैव मेंशन्ड आर एक्चुअली योर डाउट्स ओनली. ठीक है, तो नाउ वन बाय वन वील स्टार्ट. बिफोर आई स्टार्ट विद द अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेंबरिंग ऑफ द सब्जेक्ट, अगर आपने अभी प्लेटोनिक पीएसआर पे देखा होगा, तो आई हैव ट्राइड टू सेग्रीगेट पेपर वन सेक्शन ए इन अ मोर डुएबल फॉर्म. ओके, हर जो टॉपिक मेंशन्ड है उसको मैंने सेग्रीगेट कर रखा है. व्हाई एम आई सेइंग ऑल ऑफ दिस? व्हेन आई से अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेंबरिंग द सब्जेक्ट, द जीरो रूल नंबर जीरो ऑफ ऑप्शनल is to know the syllabus. Okay, now when you see the syllabus, of course there is paper 1A, paper 1B, there is paper 2A, there is paper 2B. Naturally हम सबके कुछ strengths होंगे, कुछ weaknesses होंगे, right? We cannot expect ourselves कि हमारे सारे के सारे strong हो. Okay, that is given. But what we should try to do कि ultimately we should have an understanding कि even if the paper is difficult, let's say you are very good in paper 1A, but let's say that particular year paper 1A में मुश्किल सवाल ज्यादा आए, you should be able to attempt questions from paper 1B. Okay, because see, you have to attempt 8 questions. मतलब 8 questions are given. You have to attempt 5 questions out of 8, and of course 10 marker is compulsory. Okay, for both these sections that you already know. So the point is, whatever is there in the syllabus, first of all उसकी basic understanding तो रखो ही रखो, वो तो करना ही है. ठीक है, वो basic चीज से आप भाग नहीं सकते. ठीक है, so when I say know the syllabus, exactly whatever is mentioned in the syllabus you should know. Okay, for example, if you're reading about Marx, Karl Marx as a thinker, you are reading about Gramsci, तो ये सारे के सारे थिंकर्स हमारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में है. बट व्हेन वी रीड देम वी शुड नो दैट वी आर रीडिंग बोथ ऑफ देम एज मार्क्सिस्ट थिंकर्स, right? Similarly, if I'm reading about Hannah Arendt, I should know that Hannah Arendt, one, I'm reading her as a thinker, but Hannah Arendt I also read in Power. Hannah Arendt we also read in Democracy. Okay, so one thing will have multiple linkages. How will you understand it? Rule number 0, know the syllabus. ठीक है, I often suggest people, instead of directly taking printouts, write it with your own hand. पूरा का पूरा सिलेबस अपने हाथ से एक बार लिखो. It is a tiring exercise, I know. Okay, but if you do it, you will spend some time on it. आपको ज्यादा better लगेगा. You will feel more confident. Okay, very basic thing to know. Okay, now coming back to this. अब एक एक करके, these are all the doubts you have mentioned. मैं एक एक करके बात करता हूँ. Yes, understanding and remembering the subject is very very important. Okay, and for everything I will have one example to tell you. ठीक है, for each of the things. Now, how to study and remember interconnected topics. Okay, now talking of interconnections, right? For example, we read Western political thought, we read political ideologies, we read theories of state. If I take just one thinker, for example, ठीक है, for example, if I talk to you about John Locke,
UPSC in the previous question had said Locke is the father of liberalism, right? How many of you remember this question? या सुना है इस तरह कोई क्वेश्चन आया था कभी? You can just mention yes or no if you remember it. If you've not seen it, no issues. There was a question that was asked. Locke was the father of liberalism, right? Now, liberalism is what? It is an ideology. We also have a liberal theory of state, isn't it? Right? These are some of the basic things that we have read about and we have known about. Okay. अब यही same cheese is connected. Now you read Locke as a thinker as well. But this question, and by the way, this was a 20 marker. You may struggle to do it. So whenever we read in political science, we have to read, first of all, सारे topics करो, अच्छे से पढ़ो. Interconnections, how do you or anybody makes interconnections? They make it, first of all, when they read it multiple times. When you read anything multiple times, you will slowly and steadily make connections. अच्छा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. Interconnections is a function of how much you can think. ओके, प्रीलिम्स में क्या करना है, हमें रट्टे मारने होते हैं, फैक्ट्स हैं, देयर आर सो मेनी फैक्ट्स टू रिमेंबर. मेंस एंड स्पेशली ऑप्शनल इज अ लॉट ऑफ थिंकिंग. फॉर एग्जांपल, मैंने अभी एक आर्टिकल पोस्ट करा था दैट वाज रिलेटेड टू लुई टिलिन. ओके, कोलिशन गवर्नमेंट से रिलेटेड, ठीक है. ओके, सो कोलिशन गवर्नमेंट में दिस इज अ वेरी एक्सपेक्टेड टॉपिक दिस ईयर. ओके, दैट achievements of coalition government, positives of coalition government, negatives of coalition government. Okay, how does coalition government impact federalism? These are all the basic questions that one can think. अब whenever you read a topic, I would encourage you उसको सोचो उसके बारे में. Okay, if you're not able to get the hang of it, read it again. If you're not able to get the hang of it, read a simpler material. You can even ask me, for example, कोई भी चीज पढ़ोगे इन सब चीजों में आपको ये करना ही पड़ेगा, ठीक है. You have to ultimately go through the very nitty-gritties and very basics to be able to understand the content well. ठीक है, that is one. So coming back, how to study is basically, first of all, go through the notes very well. How to remember is another part, but interconnections will come when you read a subject multiple times. And इतनी बार कर लोगे तो remember, it is not that you have to remember it mechanically. Okay, you'll get it after a period of time. That is something you can understand. Fine, number one. Appropriate content for answers. See, answer writing is again evolutionary. Matlab, when you will start answer writing, let's say you are level 1, beginner, level 2, level 3. So your content will also vary with time. The better prepared you are, the more specific you will write. The better scholars or criticisms you will have. Okay. Better introductions you will have. Better conclusions you will have. But फॉर ऑप्शनल आई विल टेल यू, एक बेसिक फ्रेमवर्क रखो. कोई भी टॉपिक रखो, एनी टॉपिक विल हैव एन इंट्रोडक्शन. यू कैन इजीली यूज दिस टेम्पलेट. देयर विल बी एन इंट्रोडक्शन. लेट्स से आई एम टॉकिंग ऑफ नियोलिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट, हाउ टू इंट्रोड्यूस इट. इफ देयर इज अ टॉपिक, सो वी कैन से, इफ इट इज फॉर एग्जांपल नियोलिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट की अगर बात करें, एनी फेमस थिंकर्स रिलेटेड टू इट, फेमस पर्सनैलिटीज. Okay, then the basic body of the content. So you will tell what it stands for, what is it about. अब political science में एक चीज जरूर याद रखना, because it is a science which has multiple interpretations. Yes, Sampada, we can talk about Naik, we can talk about Nozick, okay, Hayek, we can talk about all of them. So यहाँ पे there is an important element of criticism of somebody who is not agreeing. For example, if I talk about Plato, now Plato was criticized by Karl Popper, isn't it? People have criticized Plato for showing authoritarian, totalitarian tendencies, okay, for sacrificing individual for the state. In fact, he was also criticized by Aristotle, in fact, है ना? तो कोई भी theory ले लेंगे हम. Let's say I can mention justice. Rawls was criticized by communitarians. ठीक है? So the point to remember is there is no one single answer. You should have criticisms.
और क्रिटिसिज्म में दो तरह से होते हैं. One will be a person and the person will say something. Okay. So first remember what the person is saying. Argument का मतलब क्या है? What is the person trying to say? For example, somebody will say, okay, that Marx is a, or Marx analysis is heavily economic. So who is the person is one and what the person is saying is another. Sometimes when we read too many scholars, we get confused कि scholar का नाम क्या है. नाम नहीं भी याद आ रहा. You can simply write the critics argue or the particular scholar is criticized for being this. Okay. But the examiner is interested to know that what exactly are you having in the answer. मतलब criticism में क्या लिख रहे हो वो important है. And then you can conclude it. This is a very general template that you will see people using overall, है ना. अब इस पे depending on how well you know the topic, you can make your own iterations. जितनी अच्छी आपकी understanding है, you can have a better introduction. You can quote more people. In your body, you can have, instead of 2, you can have 3, 4 points. You can have a solid criticism and a conclusion. And if you are able to do it across the paper 1 and paper 2, definitely you will get good marks. But this is not easy. This you have to do it under a timed manner. तो हर चीज करनी पड़ेगी, समय लगता है इसमें. This is not one thing. You just, let's say, start and you just do it, है ना. So this is again something that will come with time. So again, the point is appropriate content is a evolutionary process. You will get better at it. दूसरी एक और चीज है मेरे पास बिफोर आई टेल. Whenever you see any topic in PSIR, your first step should always be, of course, you know the syllabus. Syllabus is 0. Your first step, even before you see your notes, is see the previous questions related to the topic. Let's say I want to do Machiavelli. I wanted to do, let's say, international relations, the different theories of international relations. I will see the previous questions, then I will go through my notes. After going through my notes, I will again see the previous questions. Because in political science, you will see, and generally the optionals, the humanities optional, repetition of PYQ happens on another level. बहुत ज़्यादा repetition होता है. Okay? And at least the paper 1 part of it, paper 1 is more static in nature. You can, if you have prepared your answers well, or if you have known the answers well, you can score very good marks. However, in paper 1B and in paper 2, a lot of current affairs is also there. Okay, so for that, you need to prepare the current affairs. Okay? Third point, which the student is asking, let's say, the techniques for regularly updating notes. Okay? This is again something related to current affairs. So let me now come to current affairs. And again, I think if this question is repeated again, मैं एक बार आंसर कर देता हूं इसको. You will see current affairs in paper 1B and पहले current affairs दिखता था paper 2B में, दो जगह पे. अब क्या हो गया है, पेपर 2A में भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पड़ गए हैं. ओके, सो जनरली स्पीकिंग द वेटेज ऑफ करंट अफेयर्स हैज इंक्रीज्ड, व्हिच इज व्हाई समटाइम्स द पीपल से कि सब पॉल साइंस पे हर साल मेहनत करनी पड़ती है, बिकॉज द कंटेंट इज चेंजिंग एवरी ईयर. इफ देयर इज अनदर ऑप्शन, लेट्स से मैथ्स, एंथ्रोपोलॉजी एटसेट्रा, वहां पे मैथ्स पे चलो टोटली डिफरेंट है. लेट मी नॉट काउंट इट. लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट एंथ्रो, yes, in anthro current affairs is very less, but that is then the design of the option. हमारे में पेपर 1 भी और पेपर 2 भी काफी चेंज होगा, और इस साल especially because of Indian elections and also a lot of elections globally, you will see a lot of questions on elections, on the institution carrying out elections, and then the forms of government being asked. ये सवाल दिखेंगे आपको बहुत आराम से, देखना पेपर में. ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं that you should definitely be aware about. Okay. So talking about how to update it, simple तरीका है how का, follow the newspaper editorials. I will say just one source. अभी के लिए one source is enough. Okay. If you are following Indian Express, excellent. If you're following Hindu, excellent. Okay. उसके ऊपर भी of course there are many famous scholars who keep on writing. उसके लिए better है you can follow or just see the content of any test series etc. बहुत ज्यादा इस पे करोगे तो there is too much to do. But if you follow only one good source, you will be updated. ठीक है, of late, for example, what are the recent happenings that are happening? ठीक है, USA Saudi meet हो गई, आपको पता होगा उसके बारे में. इंडिया कोई let's say recent update dialogue हुआ, so that is one. So you read the newspapers and then try to summarize it.
ओके। ऑन आवर चैनल ऑल्सो अभी ऑफ लेट 2-3 आर्टिकल्स की समरीज हमने डाली हैं, एंड वील ट्राई टू डू दिस फॉर यू। तो एटलीस्ट ये जो अपडेशन वाला पार्ट है, यू कैन एटलीस्ट बी, यू नो हाउ टू डू इट, बट स्टिल इफ यू आर गोइंग थ्रू देम, यू विल ऑल्सो गेट टू नो कि जो ऑथर ने लिखा है हमें वो रटना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लुई टिलिन का वाला आप आर्टिकल या कोई भी और आर्टिकल देखोगे, उन्होंने अपने स्टाइल में लिखा है उस आर्टिकल को। ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू, ओके, दैट वी हैव टू देन सी ओवरऑल थीम क्या है टॉपिक की। ऑलराइट, वील सी द थीम ऑफ इट, एंड देन वी विल ट्राई टू अकोमोडेट आवर कंसर्न्स। ठीक है। बट अपडेशन वाला भी जो पार्ट है ना, रेगुलरली अपडेटिंग योर नोट्स, दो चीजें हैं। एक तो जो ऑलरेडी आपके नोट्स हैं, when we take the notes for the first time, there are a lot of flaws in it. When you reread them, आपको लगेगा अरे यार ये कंटेंट मैं ऐसे कर सकता था। तो one is you can update your notes also without the current affairs part. But the second thing is of course you have to add the current affairs, वो तो करना ही पड़ेगा वरना तो नोट redundant हो जाएंगे। ठीक है। एक और चीज है मैं आपसे बोलूंगा, especially the people who want to be better at interconnections, whenever somebody or some topper कहीं और से आपको पता चलता है यार ये कॉन्सेप्ट को मैं लिख सकता था कहीं पे। For example, if I'm writing a question on Indian national movement, I can mention the Gramscian strategy adopted by, let's say, महात्मा गांधी। अब आपको लगेगा हाँ यार ये तो बहुत सी कनेक्शन है, उसकी अलग से लिस्ट बना लो कहीं पे, so that you do not forget the interconnections. So one, interconnections you can see the ones that are already there. Toppers, teachers, किसी ने कर रखा है वो देख लो, एंड लेटर ऑन इफ यू हैव रेड इट इनफ, आपको भी समझ में आ जाएगा अरे यार ये तो आसान था, ये तो हम भी कर सकते थे, कोई मुश्किल काम नहीं है। राइट, so both things can be understood, that is the main basic idea here, right? So we can do both. Okay, then scholarly work की बात हुई है, देखो पहली बात तो ये है, whatever scholars are there in your topic, okay, so let's say one, if I'm talking about scholars, first thing you should be able to do is to make a list of scholars for every topic. ये कैसे बनाओगे? लेट्स से यू प्रिपेयरिंग प्लेटो, प्लेटो पे फॉर और अगेंस्ट जो भी स्कॉलर्स हैं लिख लो कहीं पे। राइट, जस्टिस पढ़ रहे हो, जितने भी स्कॉलर्स जस्टिस में पढ़े हैं लिख लो। वॉट एवर टॉपिक इज देयर यू कीप राइटिंग स्कॉलर्स, इफ यू फाइंड समथिंग न्यू add to the list of scholars. Otherwise what generally happens, you have a huge big pile of notes, उसी में सब कुछ होता है, उसको बार बार देखने में टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, सो माय आइडिया इज ऑलवेज टू हैव अ लिस्ट ऑफ स्कॉलर्स, एकदम बेसिक पॉइंट में बस स्कॉलर्स की लिस्टिंग कर रखी है हमने। आपने एकदम से सोचा फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट, अच्छा मैंने यहाँ पे 3 स्कॉलर्स देखे, मान लो सूसन मोलर ओकिन को देखा, ठीक है, और लेट्स से आई हैव रेड अनदर कमेंट्री ऑन दैट, राइट, सपोर्टिंग इट और इट इज अगेंस्ट इट। दिस इज हाउ यू कैन मेक अ लिस्ट ऑफ इट। पहले लिस्ट बनाओ, उसके बाद उसको अरेंज करो। आफ्टर यू मेड अ लिस्ट देन यू अरेंज इट एंड देन अपडेट इट। यू रीड अ न्यू मॉडल आंसर, बहुत अच्छा कुछ लग रहा है, तो पूरा मॉडल आंसर मत लिखो बैठ के, आपके नोट्स में कहीं भी स्कॉलर में जहां पे कम था वहां ऐड कर लो। फॉर एग्जाम्पल, यू रेड अ रीसेंट आर्टिकल ऑन इंडिया ईरान रिलेशंस, आपके पास कोई अच्छा स्कॉलर वाइज कंटेंट नहीं है, वहां पे आपने ऐड कर लिया इसको। सो अगेन ऑल दीज थिंग्स मीन हाउ बेटर नोट्स यू आर मेकिंग, आपके नोट्स कितने अच्छे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, ये आई थिंक सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। एक तो टेक्निक्स फॉर रिपीट नोट्स है, हाउ टू कीप नोट्स अपडेटेड विद द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। ओके, you have to do the work also, but of course you can take assistance of editorials or newspaper. If you join any test series, अगर वहां पे अच्छा content है आपको लगता है उससे अपडेट कर सकते हो, that will also solve your time, sorry, that will also solve your problem of time that is there. Now one thing I have seen many students ask, methods to improve memory retention of these facts हो गया, scholars हो गया, बहुत कुछ होता है। How many of you face this problem that there is too much? Sampada, I'll come back to your question very shortly. बहुत ज्यादा लगता है ना, वो क्यों ऐसा ज्यादा लगता है? I'll tell you, is that we have a very random technique of study. Okay, from now I will advise, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, let's say this is the topic, पहले कोशिश करो टॉपिक को एक फ्रेमवर्क में बांधना है अपने को। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यू कैन इवन थिंक ऑफ प्लेटो, मैकियावेली, कोई थिंकर ले लो, कोई टॉपिक ले लो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई पुट जस्टिस हियर, अगर मुझको पता है मुझे करना क्या है, जैसे कि आई विल हैव एन इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक,
इंट्रोडक्शन भी दो तीन तरह का है, आपने देखा होगा। प्लेटो के से रॉल्स को कंपेयर किया गया है जस्टिस में। Justice is the architectonic notion, for example. Good keywords. One will be the introduction. Then, who are the important scholars in that topic? किनके scholarly views की बात करी गई है? Okay. Then, content wise. For example, अब justice में we specifically read about roles. तो roles की जितने भी words हैं, keywords हैं, right? आपने सुना होगा. Original position, veil of ignorance. Okay. जितना कुछ भी है roles का हम लिखेंगे, उस टॉपिक का क्या क्रिटिसिज्म है, और ये कोशिश करो सब अपने, यू हैव टू ड्रॉ इट विद योर ओन हैंड्स, ओके, एंड देन द कंक्लूजन. सो व्हाट आर यू एसेंशियली डूइंग, यू हैव वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड द टॉपिक. अब इसमें मैं चाहे न्यू लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट कर दूं, उसमें हम बात कर सकते हैं. जब मैं स्कॉलर्स कह रहा हूं, ऑलवेज ट्राई टू राइट द नेम ऑफ देयर बुक्स. इफ इट इज अ 15 मार्कर, आप बुक्स का नाम लिख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, रॉल्स बुक A Theory of Justice of 1971. You can mention that. ये सारी चीजें आप generally you will find that you will do it. Okay. आप कर सकते हो राघवेंद्र. Okay. मैं माइंड मैप्स लास्ट पे इस लेवल पे क्यों बना पा रहा हूं, मुझे ऑलरेडी बीच सबका कंटेंट पता है. तो अब शायद आप लोग को इतने ज्यादा माइंड मैप लेवल पे नहीं पता हो, बट अगेन माय फर्स्ट पॉइंट इज, देखो जो भी नोट्स है हमारे पास, वो नोट्स हो सकता है बहुत बल्कि हो कहीं पे. ओके, इफ द नोट्स आर टू बल्कि, इट इज योर ड्यूटी टू बी एबल टू कंडेंस इट. कंडेंस करने के आप सबके अपने तरीके हैं. कुछ लोग कंडेंस कैसे करते हैं, वो सिर्फ हाईलाइट करते हैं, वो कहते हैं हम सर हाईलाइट ही पढ़ पाएंगे. बट आई फाउंड द हाईलाइटिंग पार्ट टू बी लेस एफिशिएंट. व्हाई? जब एग्जाम पास आता है ना, जब आपके पास लास्ट में 5 दिन बचते रिवाइज करने के लिए आफ्टर योर जीएस पेपर्स, वो बल्कि ना 8-10 बुक्स नहीं नहीं पढ़ पाते हैं हम लोग, एंड देन वी फील अ लॉट ऑफ पैनिक. तो इफ यू आर गोइंग टू, कोई भी जब भी मेंस लिखेगा फाइनली, बिगिन विद द एंड इन माइंड. आपके पास अगर शॉर्ट नोट्स होंगे हर एक टॉपिक के, आपके पास बेसिक मोटे नोट्स हैं अपने, ठीक है, पढ़ेंगे वहीं से, बट हम उसको स्लोली एंड स्टेडली वी विल शॉर्टन इट. शॉर्टन करना ही है. और मैं आपसे एक चीज कहूंगा, आप ये चीज करके देखिएगा. वेन एवर यू हैव शॉर्टेंड द नोट्स, बहुत बार क्या होता है, पीपल ज्वाइन टेस्ट सीरीज और वो बस मुंह उठा के टेस्ट देने जाते हैं, क्योंकि वो रिवाइज ही नहीं कर पाते. आप एक प्रॉमिस करना अपने आप से, let's say you have to give the test of paper 1 section A in 2 weeks. लास्ट दिन आपको सिर्फ अपने माइक्रो नोट्स पढ़ने हैं. उससे पहले तक आप अपने नोट्स पढ़ो, रिवाइज करो, शॉर्टन करो. आप हर एक टेस्ट जो दोगे फ्यूचर में, अपने माइक्रो नोट्स रिवाइज करके दो. हो सकता है माइक्रो नोट्स शुरू में बनाने में टाइम ज्यादा लगे, आपको लगे यार मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, बट जब फाइनली मार्क्स आएंगे ना फिर टेस्ट में, फिर आपको दिखेगा इसका फायदा. एंड वेन यू आर डन विद द टेस्ट सीरीज लिखिए, जो भी करा आपने, जो टेस्ट सीरीज नहीं मान लो आपको ज्वाइन करना है, यू कैन इवन अटेम्प्ट द प्रीवियस क्वेश्चंस. यू कैन सी द टॉपर आंसर कॉपीज, देयर आर अ लॉट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स एवरी टाइम. ठीक. तो जब आपने इसको करके देखा, यू विल फाइंड, एंड व्हेन यू गेट गुड मार्क्स, दिस इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. तो ये एक बेसिक चीज है विच आई विल वांट यू टू डू, दैट कंडेंस द नोट्स एंड मेक इट इन अ फॉर्म. एंड अगेन देखो, आपने भी देखा ये जो टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल थ्योरीज ऑफ स्टेट, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है. राइट्स, इक्वालिटी, अपार्ट फ्रॉम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट इन पेपर 1A, देयर इज हार्डली एनी टॉपिक दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. बताओ ट्रू और फॉल्स? एंड समबडी हु हैज डन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट वेल, एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स पेपर 1A बहुत अच्छा करते हैं, बट उसका डाउन साइड क्या है, वो पेपर 1B और पेपर 2 अच्छे से नहीं करते हैं, एंड दैट इज व्हाई यू विल सी दे विल स्कोर वेरी लेस मार्क्स. तो हमें दोनों चीजें समझनी पड़ेंगी, राइट? दैट वन वी आर एबल टू अंडरस्टैंड. ओके, पेपर भी सफर करता है, ये होता है, मतलब दिस इज देयर. क्यों? क्योंकि वी यू जनरली स्पेंड टू मच टाइम ओनली इन वन पार्ट ऑफ द सिलेबस. वो वैसे भी कोई बहुत चीज स्ट्रेटजी नहीं है. सो दैट इज वन बेसिक थिंग, और ये ऑपरेशनलाइज करने के लिए दिस टेक्स टाइम, एंड यू शुड बी पेशेंट इनफ कि नहीं मेरे को इस तरह से कंडेंस करना है. मान लो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट नहीं भी कंडेंस कर पाए, बाकी सब कर लिए, तो आपका टाइम वहां बच जाएगा. ठीक है. This is the first segment I wanted to discuss, understanding and remembering the subject. Remembering के लिए सिंपल याद रखो, अगर आपको वो टॉपिक आता है, ठीक है, इफ यू नो द टॉपिक वेल, अगर आपने अपने नोट्स बना रखे हैं, यू विल बी एबल टू राइट इट. इट इज नो मैजिक साइंस, इट इज नो रॉकेट साइंस. इतना कुछ मुश्किल नहीं होता है.
ठीक है। तो हमें, हाँ, दिक्कत होती क्यों है मैं आपको बताऊं। आपने कोई आर्टिकल पढ़ा, आप बस उसमें जरा जरा से कीवर्ड्स याद कर रहे हो, माइक्रो माइक्रो फैक्ट्स याद कर रहे हो। माइक्रो फैक्ट्स किसी को याद नहीं होते हैं। आपको कोशिश करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द ब्रॉड थीम एंड देन अंडरस्टैंड व्हाट द ऑथर और द स्कॉलर इज ट्राइंग टू से। ट्राइंग टू से अगर कैप्चर कर लिया तो आप समझ जाओगे। इसीलिए आइसोलेटेड फैक्ट के पीछे मत भागो। दैट इज द फर्स्ट थिंग आई विल एडवाइस ऑल ऑफ यू। देन नोट टेकिंग एंड टाइम मैनेजमेंट में भी एक बार फटाक से देख लेते हैं, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू वांटेड टू आस्क मी। challenges of making short notes that are not very bulky, right? शॉर्ट नोट्स बहुत लोग बनाते हैं, पर देखो कुछ आप में से ऐसे लोग होंगे हु विल मेक ऑनलाइन नोट्स। आप ऑनलाइन बना लो। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो नोट्स बनाते ही नहीं है, एंड नोट्स डू नॉट वर्क फॉर देम। ओके, अगर आप ऐसे हो ठीक है, कोई बात नहीं, बट यू डू व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। आपने इससे पहले भी कॉलेज के एग्जाम दिए हैं, बोर्ड्स के एग्जाम दिए हैं, एंड इन टॉपिक्स व्हेन यू हैव टू रिमेंबर अ लॉट ऑफ कंटेंट यू डू। माय एडवाइस जनरली इज, आप स्केलेटन या एकदम शॉर्ट कीवर्ड टाइप के नोट्स बना सकते हो। ओके, एंड आई एम टेलिंग यू द शियर एक्ट ऑफ राइटिंग थिंग्स डाउन। मेंस में लिखना है बैठ के अपने को, हम फिर से एक बार लिख लेंगे तो हमारा ही कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। तो रेपिटेशन से डरो मत, रेपिटेशन फायदा करता है, रेपिटेशन इज द मदर ऑफ मास्टरी। ओके, सो दैट इज वन। ओके, देन ये एक सवाल बहुत रिपीटेड है कि सर स्ट्रैटेजी बताओ कंसाइज और एग्जाम रेडी नोट्स के। आप देखो कितनी बार वो बार बार रिपीट हो रहा है, अभी आगे भी रिपीट होगा। ठीक है, आप देखो एग्जाम देना कब है अपने को, उससे 20-30 डेज पहले अगर आपके नोट्स बन जाते हैं तो आप कर सकते हो। कंसाइज का मतलब क्या होता है मेरे हिसाब से, देखो आपके नोट्स में स्पेशली स्पीकिंग योर नोट्स शुड हैव, क्या होना चाहिए नोट्स में, ऑल द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। आप ये सोचो, आप ये भूल जाओ आपको खुद नोट्स बनाने हैं। आपसे अगर मैं पूछूं कि प्लीज लेट्स से अनंत इज हियर, सिद्धि इज हियर, अरीब इज हियर, इफ आई आस्क यू कि प्लीज हेल्प मी मेक नोट्स, आप मुझसे क्या कहोगे? यार आपके नोट्स में ना अच्छे कीवर्ड्स होने चाहिए, जो प्रॉपर स्कॉलर्स मेंशन्ड है वो होना चाहिए, इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, भले ही प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर मत लिखो बट वो प्रीवियस क्वेश्चन लिख लो। राइट, अगर ये सब आपके नोट्स में होगा, राइट, सो यू विल डेफिनेटली बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स। राइट, एंड ऑफ कोर्स इंट्रोडक्शन कैसे करना है, कंक्लूजन कैसे करना है, तो अपने नोट्स इसी फॉर्मेट में लास्ट में बनाओ। तो देर इज देन नो पॉइंट ऑफ एलैबोरेटिंग टू मच ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश कम रखो क्योंकि वो आप एक्सपैंड कर लोगे। आप ऐसे रखो, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, आई थिंक somebody wrote in the comment section प्लेटो की, उन्होंने बात करी थ्योरी ऑफ एजुकेशन की। प्लेटो also gave the theory of souls. Okay, Plato of course was criticized for his theories, communism of wives and property. अब लास्ट में अगर मुझे बस यही याद आ जाए, अच्छा हाँ एजुकेशन की थ्योरी दी है, कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी दी है, ये सब दिया है, आप यू विल बी एबल टू एक्सपैंड इट इन द एग्जाम हॉल। तो व्हेन यू मेक योर नोट्स आप बस कीवर्ड्स डालो। अगर कीवर्ड्स खुद नहीं समझ में आ रहा इसका मतलब आपको नोट्स अच्छे से तैयार नहीं है। गो बैक, रीड द नोट्स। ओके, सो बेसिक नोट्स एक चीज हो गई। उस बेसिक नोट्स से हमें बनाने हैं अपने एग्जाम रेडी या माइक्रो नोट्स। ठीक, और इन सब चीजों में टाइम लगता है, एक सेकंड में आप नहीं कर पाओगे। आप सोचो बस आओ और पहली बार एक सेकंड में कर लोगे, ठीक है, बट विद टाइम यू विल बी एबल टू गेट अ हैंग ऑफ इट। टिल नाउ आर यू एबल टू फॉलो द पीपल हु आर हियर, आर यू एबल टू फॉलो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे? ठीक है, और आप लोग देखो बिकॉज यू आर हियर, एंड अगेन मुझे नोट्स बनाने में और स्टूडेंट्स को हेल्प करने में बड़ा मजा आता है। यू कैन, आपने कोई टॉपिक पढ़ा, कंडेंस करा, आप मेरे को स्क्रीनशॉट भेजो कि मैंने ऐसे से कंडेंस करा है। उससे और आसान तरीका होगा कंडेंस करने का, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इससे पहले भी कुछ बच्चों ने भेजे हैं अपने कमेंट्स अपने कि हाँ सर हमने ऐसे कर रखा है, इसको ऐसे कर रखा है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं दैट लेट्स से वी विल, दैट यू विल आल्सो अंडरस्टैंड। राइट, नाउ कमिंग बैक टू द अदर एरियाज, मैनेजिंग टाइम टू कवर टॉपिक्स एफिशिएंटली एक, दूसरा एस्टिमेटिंग टाइम फॉर सिलेबस कंप्लीशन, ये दोनों एक थीम्स आपने पूछे हुए हैं मेरे से। इसमें देखो पहले तो यू हैव 4 सेक्शंस, पेपर 1A, 1B, 2A एंड 2B। ठीक है, इसके लिए आपको जो टाइम एलोकेट करना होगा, ओके, मेंस आपका है मिड सितंबर में, एंड द लास्ट 2 वीक्स पीपल विल डिवोट इट ओनली फॉर द जीएस एसे, तो ये भी भूल जाओ। ठीक है,
सो द पीपल हु आर गोइंग टू राइट द मेंस, मैं दो तरह से आपको टाइमलाइन दूंगा। ओके, अब टाइमलाइन की बात कर लेते हैं। द पीपल हु विल राइट मेंस, ओके, यू हैव अराउंड 1 वीक ऑफ जून फ्रॉम नाउ, पूरा जुलाई है और पूरा अगस्त है, इतना ही टाइम है आपके पास, इससे ज्यादा टाइम नहीं है। मे बी इन द फर्स्ट वीक ऑफ सेप्टेम्बर यू राइट द टेस्ट, बट आई एम नॉट इंक्लूडिंग दैट। ओके, लक्ष्मी, आई थिंक माई आईडीज एक्सेट्रा दे आर ऑलरेडी शेयर्ड, तो वो आप अलग से भेज सकते हो। इंडिविजुअली भी यू कैन सेंड इट टू मी। अभी कमेंट वाला सेक्शन स्पेशली पीएसआर में ऑन नहीं किया है, इफ आई गेट मोर रिस्पॉन्सेज उसको भी ऑन कर देंगे, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। सो कमिंग बैक, यू हैव टू कंप्लीट एवरीथिंग इन दिस। सो मेरे हिसाब से आपके पास क्या है, यू हैव 14 days पर सेक्शन, 14 days पर सेक्शन है आपके पास, ठीक है? तो बहुत टाइम तो नहीं है आपके पास। ओके, सो यू हैव टू बी ऑन योर फुट, राइट? एंड द पीपल हु आर नाउ गोइंग टू कॉम्प्रिहेंसिवली, जिनको अच्छे से प्रिपेयर ही करना है अपना ऑप्शनल, उनको मैं बोलूंगा अगेन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, 1 month पर सेक्शन एंड 1 extra बफर मंथ, यू हैव मोर टाइम। देखिए एक और चीज है, बहुत बार क्या होता है, व्हेन अ स्टूडेंट कीप्स ऑन राइटिंग मेंस अगेन एंड अगेन, दे आर वर्किंग इन वेरी टाइट टाइमलाइंस। उनको इस समय ऐसे भी देखना है, एथिक्स भी देखना है, जीएस भी देखना है, प्लस ऑप्शनल भी देखना है, ठीक है? सो समटाइम्स यू सी, जो लोग लगातार प्रीलिम्स निकालते रहते हैं, उनके पास बहुत ज्यादा टाइम होता ही नहीं है मेंस इंप्रूव करने का। इफ दे आर एबल टू डू एक्सीलेंट, बट जनरली स्पीकिंग इट इज डिफिकल्ट। तो आप लोग, अगर आपको अच्छे से टाइम यूज करना है, इफ यू हैव टू यूज योर टाइम टू द बेस्ट, यूज दिस, टेक जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 एंड 1 extra month, जिसमें थोड़ी सी और आंसर राइटिंग कर लो, नवंबर है, दिसंबर भी यूज कर सकते हो इफ यू वांट, बट ट्राई टू डू दिस। तो आप ये भी कर सकते हो 1 week, 1 month एंड 1 week फॉर ईच। बट अब आपको पता है आपको करना क्या है, वॉट यू हैव टू डू, यू डोंट सिंपली, मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, अभी भी वो नोट्स रीड ही करते हैं। रीड करने में बड़ी मजा आती है, इट इज, स्टेप 1 इज रीडिंग, बट द टफर पार्ट इज शॉर्टनिंग इट डाउन, उसको छोटा करना। फिर लगता है अरे यार इतने नोट से नहीं हो पाएगा, यू स्टार्टेड 2 3 4 10 15 पन्ने लिखे, फिर छोड़ देते हैं। आप फिर से, यू विल क्रिएट द सेम प्रॉब्लम अगले साल जब मेंस लिखोगे, तो यू हैव टू डू दिस अगेन। प्लस मैं आपको बोल रहा हूं, आपको अगर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट टफ लग रहा है कंडेंस करने में, स्टार्ट फर्स्ट विद स्मॉलर टॉपिक्स, और जब मोमेंटम बन जाएगा, डब्ल्यूपीटी भी हो जाएगा। लास्ट में ना, जो पीपल हुआ राइटिंग मेंस कंसिस्टेंटली, उनको प्लेटो रिवाइज करने में फिर 1 2 घंटे घंटे नहीं लगते। दे ओनली सी द हेडिंग्स इन हाफ एन आवर, दे कैन रिवाइज प्लेटो एंड इन गुड डिटेल बिकॉज दे रेड इट सो मेनी टाइम्स, ठीक है? तो इफ यू डू इट, मेक इट अ प्रॉमिस थ्रू द ग्रुप ऑल्सो। मैं कोशिश करूंगा आपको नोट मेकिंग में, आई गिव यू टाइमली रिमाइंडर्स कैसे कंडेंस करना है, कुछ करना है, बट एटलीस्ट यू शुड ऑल्सो, कि आप जो भी टाइम लगाओ, आप 5 महीने अगर ऑप्शन में लगाने वाले हो अच्छे से, तो क्या करना है, वॉट शुड बी योर गोल? ऑफ कोर्स रीडिंग तो करनी ही है, यू हैव टू रीड योर नोट्स, बट यू हैव टू कंडेंस योर नोट्स, यू हैव टू अपडेट योर नोट्स। नोट्स हो सकता है 2022 के हो, 2023 और पुराने हो सकते हैं। करंट अफेयर्स आपको नहीं अच्छे से फॉलो करा था, जरूर करो फॉलो। एंड द मोस्ट ड्रेडेड थिंग इज आंसर राइटिंग। और कुछ लोग क्या है, कुछ सेक्शंस उनको अच्छे आते हैं, इफ दे आर गुड इन पेपर 1A, वो 1A ही लिखते रहते हैं, राइट? यू डोंट हैव टू बी दैट। वन बिग थिंग किसी भी एग्जाम में, ऑलवेज टू डू समथिंग विच इज डिफिकल्ट। इफ आंसर राइटिंग इज डिफिकल्ट, शुरू वहीं से कर दो। चाहे शुरू में नहीं लिख पाओगे, बट आफ्टर दैट यू विल हैव द आइडिया टू राइट इट डाउन, राइट? सो मेरा पॉइंट यही है इन सब चीजों में आपको बताने का, कि कोशिश करनी है कि स्ट्रक्चर्ड तरह से टाइम यूज करें। देयर इज नो पॉइंट ऑफ, अगेन सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि यू स्पेंडिंग 5 to 6 months ऑन ऑप्शनल, बट लास्ट में क्या हुआ, टेक अवे 0। तो यू हैव टू स्टैब्लिश दिस अकाउंटेबिलिटी। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? टाइमली मंथ वाइज टारगेट्स रखने अपने लिए, एग्जैक्टली कैसे करना है, ठीक है? और एक चीज याद रखो, जो भी टॉपिक पढ़ो, फॉर एग्जाम्पल आपने इक्वालिटी पढ़ लिया, यू विल ओनली से आई हैव डन इक्वालिटी,
ठीक है, अब से यू विल ओनली से आपने इक्वालिटी तब कर रखा है अगर आपने उसका एटलीस्ट एक प्रीवियस क्वेश्चन लिखा है। एटलीस्ट कह रहा हूं मैं, आई एम नॉट सेइंग ऑल। ऑल लिखूंगा तो बहुत टफ हो जाएगा। इफ यू हैव डन एटलीस्ट वन प्रॉपर, पढ़ने के बाद, बिना देखे, विदाउट असिस्टेंस, व्हेन यू राइट, देन यू कैन टिक इट ऑफ कि मैंने कर लिया इसको। इज दिस क्लियर? ओके लक्ष्मी, आई हैव मेंशनड माय आईडी हियर। और भी लोग को दे नो द आईडी दैट इज आल्सो मेंशनड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ग्रुप। ओके, ठीक है। तो दैट इज हाउ यू हैव टू डू, सी। तो आंसर राइटिंग पे भी ध्यान देना है। जितनी गलती देखो, इफ यू आर थिंकिंग ऑफ राइटिंग द एग्जाम इन 2025, वॉट एवर मिस्टेक्स यू विल मेक इन द एक्चुअल एग्जाम, उसको पहले ही ट्राई करना है। मेक दोज मिस्टेक्स एज मच एज पॉसिबल अभी खुद से। ठीक है, इफ यू डू दैट, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट इज नीडेड। ठीक है, और यहां से आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। वेन यू नो यू आर राइटिंग गुड आंसर्स, कंटेंट अच्छा खुद को पता चल जाता है ना कि भाई बेसिक सारे आर्ग्यूमेंट्स लिख रखे हैं, अच्छे से कीवर्ड्स लिख रखे हैं, स्ट्रक्चर्ड है मेरा आंसर। सो दैट इज द वे फॉरवर्ड। ओके, नाउ एक और चीज है, GS2 और पेपर 1B। मैं एक चीज बोलूंगा आप लोगों से, 1 सेकेंड। देखो, GS2 इज ऑफ 250 मार्क्स, PSIR is of 500 marks. Whenever you prepare PSIR, think that you're preparing for 750 marks. Why? GS2 में you'll get 4 questions on IR mains में, and around 10 to 11, 12 questions on polity and constitution, true or false. बाकी क्वेश्चंस मिला के सोशल जस्टिस के और गवर्नेंस के होंगे। इफ यू हैव प्रिपेयर्ड PSIR वेरी वेल, ये क्वेश्चंस भी आप अच्छे से कर सकते हो। दूसरी चीज ये भी है कि इसको जरूर अच्छे से करना। When you write, so again, I would want PSIR के students, they should definitely score very good marks in GS2. They have been doing so, but sometimes उल्टा भी हो जाता है। When you get too complacent, तब आप IR अच्छे से नहीं करके जाते, तो आपके ना नंबर यहां आते हैं ना नंबर यहां आते हैं। ठीक है, सो अगेन यू शुड नॉट बी in this particular habit that you lose out on both. Fine, you should prepare both. अब कंबाइन करना है, कुछ करना है, आई कैन से इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ओके, प्लस अगर ये दोनों कर रहे हो तो अब आप अपने सिलेबस को और अच्छे से समझ पाओगे। यू कैन इवन एलोकेट योर टाइम बेटर, फाइन, विद दिस पर्टिकुलर थिंग। सो अगेन दिस इज व्हाट वी वांटेड टू नो। अब राइटिंग आंसर्स पे आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन राइटिंग आंसर्स, उसके बाद कुछ स्पेसिफिक डाउट्स भी बचे हैं। ठीक है, अब देखो, इफेक्टिव वेज टू बिगिन एन आंसर। एक चीज हमेशा याद रखना आंसर राइटिंग में, द ओनली वन थिंग आई विल टेल यू, परफेक्शन और परफेक्ट इज द एनिमी ऑफ गुड। ये आपको तब पता चलेगा जब आप फाइनली मेंस लिखोगे। Effective ways to begin an answer, one is, of course, I can tell you, you can tell the context, you can define the theory, but writing answers में एक चीज याद रखो, शुरू के आपके एटलीस्ट 50 to 100 आंसर्स विल नॉट बी वेरी गुड। तो यहां पे बहुत हाई होप्स मत रखो आप। इट इज ओनली आफ्टर यू राइट दीज मेनी आंसर्स यू विल गेट बेटर विद टाइम। और 100 आंसर्स कोई बहुत ज्यादा नहीं है एक पेपर में। व्हेन यू राइट अ फुल टेस्ट ऑफ PSIR, you write around 19 to 20 questions. Okay, so if you are writing 4 to 5 full length tests, that is all, right? So the point is, when you are writing, तो अब इंट्रोडक्शन बहुत होते हैं। कोई क्वेश्चन मान लो बहुत स्पेसिफिक आया, let's say a question is very specific on Aristotle's theory of constitution, but if you write an introduction about Aristotle in general, तो वो क्या हो गया, जनरल इंट्रोडक्शन है। Now an introduction can be both general as well as specific. So this you will get and you will learn better with time. But पहली चीज है आंसर लिखो। ठीक है, हाउ टू इनकॉर्पोरेट कोट्स इफेक्टिवली इन आंसर। सिंपल चीज कैसे कर सकते हैं। नंबर वन, इफ यू आर राइटिंग, फॉर एग्जाम्पल हम कार्ल मार्क्स की बात कर रहे हैं, ठीक है,
कार्ल मार्क्स की अगर आप थ्योरी की बात करो या फिर इस एनालिसिस की बात करो, इट इज ऑलवेज बेटर टू राइट हिज कोटेशंस. ओके, द वर्ड how this dialectical or historical materialism is happening, we can mention that, okay, through a quote. तो कोट कैसे यूज करना होता है, इसलिए एक चीज समझनी है. जब भी हम आंसर्स लिखते हैं, आंसर्स में क्या होता है, देखो आंसर में आप इंट्रोडक्शन देते हो, आंसर में बॉडी होती है, उसी बॉडी के बाद यू कैन एंड इट विद क्रिटिसिज्म एंड यू हैव अ कंक्लूजन. ये मैं नहीं कह रहा, ये चाहे आप एनसीईआरटी देखोगे, अपने पॉल साइंस की बहुत सारी बुक्स देखोगे, बेसिक ऑथर्स, राइटिंग टॉपर्स, ऑलमोस्ट यही फ्रेमवर्क है. ठीक है. नाउ व्हेन यू राइट द बॉडी, व्हेन यू राइट द आर्ग्यूमेंट, ओके, लेट्स से पहला पॉइंट है रिलेटेड टू मार्क्स हिस्टोरिकल materialism. Up to support this, I can mention a quote here. ठीक है. Similarly, if I'm writing about Hannah Arendt और मुझे एकदम banality of evil याद आता है या कोई पॉइंट याद आता है, अगर मुझे उससे रिलेटेड कोई कोट है तो मैं मेंशन कर सकता हूं. कोट्स को कभी भी ओवरडू नहीं करना है. वी विल हैव टू एंश्योर दैट वी यूज देम इफेक्टिवली, राइट. एंड दिस ऑल्सो एंड करना है. कोई अच्छे, मान लीजिए दिस अ गुड कोट ऑन पार्लियामेंट, दिस अ गुड कोट ऑन कोलिशन गवर्नमेंट, कोई ऐसी चीज मिली आपको, और इन्हीं चीजों के लिए तो यू रीड मोर एंड मोर, लेट्स से न्यूज़पेपर्स, यू रीड मोर एंड मोर थिंग्स, राइट. आप टॉपर कॉपीज, तो आपकी व्हाट यू शुड डू, हाउ कैन यू राइट बेटर आंसर्स, यू शुड हैव अ स्मॉल कॉपी. उस कॉपी में हमारे स्कॉलर्स हैं, उसी कॉपी में हमारे कोट्स हैं, उसी कॉपी में कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं. लोग जीएस के लिए ये करते हैं, आप ऑप्शनल के लिए भी इस चीज को करो. ओके. एंड दिस शुड बी योर मैजिक सॉस. दिस कॉपी इज योर मैजिक सॉस. Okay, you will sprinkle the magic ingredients for every answer if possible, and you can get good marks. How to effectively use commentaries in answers. कमेंट्री में मैं एक चीज बोलूंगा. आपने आर्टिकल पढ़ा, लेट्स से मैंने कल ही एक आर्टिकल शेयर किया था सी राजा मोहन पे, राइट. नाउ सी राजा मोहन इज गोइंग टू राइट एवरी वीक. हर्ष वी पंत हर वीक लिखेंगे, श्याम सरन हर वीक लिखने वाले हैं, ब्रह्मचलानी हर वीक लिखेंगे. कैन यू कीप अप विद ऑल ऑफ देम? ऑफ कोर्स नॉट, नहीं कर पाओगे कीप अप. अब देखो, सी राजा मोहन का जो आर्टिकल था, दैट आर्टिकल वाज रिलेटेड टू द चैलेंजेस मोदी 3.0 फेसेस आफ्टर इट्स इलेक्शंस. ठीक है. मैंने जो उसको आपको समराइज करके भेजा, मैंने मोदी 3.0 को चेंज करते मैंने बना दिया चैलेंजेस फॉर इंडिया. अब अगर मुझे पता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में देयर विल बी कंटिन्यूटी, देयर विल बी चैलेंजेस. ओके, ये आपने पढ़ा है ना, देयर इज फॉरेन पॉलिसी में देयर इज कंटिन्यूटी एंड चेंजेस. दैट इज द मेन थीम ऑफ द टॉपिक. एंड विद इन दैट, in one dimension, if I remember, okay, C. Raja Mohan was saying this. So I don't have to bother what exactly he was saying, but if I know the topic well, my job is done. तो हम लोग बहुत बार क्या करते हैं, हम आइसोलेटेड, अच्छा ऑस्ट्रेलिया में या अफगानिस्तान में इस थिंकर ने क्या कहा, उसको रटते हैं बैठ के, वो याद नहीं होगा इतनी आसानी से. इससे बेटर है व्हेन यू रीड अबाउट अफगानिस्तान और इंडिया रिलेशंस, उसमें जो पॉइंट्स बन रहे हैं, उस पॉइंट्स को वो ऑथर सब्सटैंशिएट कैसे कर रहा है. जैसे कि अफगानिस्तान इज नोन एज द ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स. नाउ राकेश सूद इज गोइंग टू यूज दिस पॉइंट एंड मेंशन द रीसेंट तालिबान टेक ओवर, और कुछ वो ऐड कर देंगे. तो मुझे पता है तालिबान का बेसिक पॉइंट, इंडिया का केस, आई नो द रीसेंट चेंज ऑफ पॉलिटिकल रिजीम, एंड देन व्हाट राकेश सूद वाज सेइंग, आई कैन लिंक दैट टू इट. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? थोड़ा सा कुछ समझ में आ रहा है हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? कमेंट्रीज को रटो मत. रटने बैठोगे तो there is no limit of 1,000 commentaries I can give you. हर दिन हर न्यूज़पेपर में there are 3 or 4 international relations के authors who are writing. It is their job. We are students. We have to limit our content. So prepare a topic well. उस टॉपिक के डायमेंशन में जो पार्ट सबसे आसान है सपोर्ट करना, वो याद करो. Then one thing I will say, especially अगर अभी आपके पास टाइम है, you can listen to podcasts, you can listen to interviews, okay, maybe of Dr. S. Jaishankar or any of the expert that you like. बहुत बार क्या होता है, when we only read, our retention is, let's say, limited.
बट वेन वी लिसन अपने को और नए डायमेंशन पता चलते हैं, ठीक है। आपको ये तरीके पता चलेंगे, इसको करिएगा, राइट। अदर पॉइंट्स, लेट्स सी, टेक्निक्स फॉर स्टेइंग विद इन वर्ड लिमिट्स while providing deep analysis। अब ये सारे कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं which were shared to me by the students who had already written mains, ठीक है। तो अब जिनके मार्क्स ऑलरेडी उन्होंने अपने मार्क्स भी शेयर कर रखे हैं, तो देखो उनके लिए इस पॉइंट का जो सिंपल आंसर मेरे पास, हम इसमें क्या बात करेंगे, देखो ये सबको करना है। देखो ऐसा नहीं होना चाहिए इफ यू नो इंडिया पाकिस्तान वेल, 200 वर्ड्स लिखा है, 250 वर्ड्स लिखा है, यू राइट 300 वर्ड्स। इफ यू एक्सीड वर्ड लिमिट यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट द पेपर ऑन टाइम, ठीक। एक चीज आप नोट करना, व्हेन यू राइट आंसर्स, और ये मैंने क्योंकि बहुत बार वी चेक द कॉपीज एटसेट्रा, तो व्हाट एक्चुअली हैपेंस, यू राइट अ पॉइंट, इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने में यू टेक 5 लाइन्स, इस पॉइंट्स को भी आपने 5-6 लाइन में एक्सप्लेन कर दिया, इसको भी 5-6 लाइन में एक्सप्लेन कर दिया, आपने एक्सप्लेन अच्छे से करा, नो इश्यूज। बट समबडी एल्स व्हाट दे, सो बट यू आर ओनली एबल टू कवर 3 पॉइंट्स, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। द सेम थिंग कैन बी डन, 1 इसको 2 लाइन में, 2 लाइन, अदर पर्सन कैन राइट 5 और 6 डायमेंशंस। अब यूपीएससी के एग्जाम में एक चीज याद रखना, आप कुछ भी कर लो, द नंबर ऑफ पॉइंट्स और द डायमेंशंस यू आर राइटिंग विल प्ले अ पार्ट। Number of points or the dimensions that you write will always play a part. So you cannot say कि सर मैंने कुछ पॉइंट्स को इतनी डिटेल में एक्सप्लेन किया और कुछ पॉइंट्स को कम करा, नहीं, हमें दोनों चीज का बैलेंस देखना होगा। ओके, we have to go for a proper balance in both. That one, we have a good dimensional coverage where, and we also explain the things. तो ये आपको समय के साथ पता चलेगा। ओके, आई कैन ऑल्सो शेयर सम ऑफ दीज कॉपीज विद यू, जहां पे आप देखोगे, एंड आपने खुद शायद नोटिस किया हो, व्हेन यू राइट कुछ कुछ पॉइंट्स आप ओवर एक्सप्लेन करते हो। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दैट हैपनिंग विद यू, दैट यू ओवर एक्सप्लेन अ पॉइंट, 5-6-7 लाइन में लिखोगे एंड यू कुड हैव डन दैट इन 2 लाइन्स। Raghavendra, okay, anybody else? So again, please remember the first step to change is of being aware about the point। हमें पता होना चाहिए, राइट। अगर आप ऐसे कर लोगे तो ऑफ कोर्स यू विल गेट बेटर, फाइन। अगेन आंसर राइटिंग एक प्रोसेस है, पर अगर आपने ये प्रोसेस नेल कर दिया आंसर राइटिंग का, जीएस के लिए, ऑप्शनल के लिए, कोई रोक नहीं सकता आपको रैंक लाने से, ठीक है। हाउ टू कंसोलिडेट अ थिंकर टॉपिक ऑन 1 पेज, दिस वी हैव डिस्कस्ड। आइडिया सिर्फ ये नहीं है एक पन्ने में कंडेंस करना है, पहले तो ये अपने नोट्स को ऑर्गेनाइज करना है। नोट्स में बहुत चीजें इधर उधर होंगी, एक पेज में करने का सिंपल यही मतलब है, आप सारी हेडिंग्स वहां पे लिख लोगे, बट यू नो हाउ टू एक्सपैंड और एक्सप्लेन देम, राइट। मेथड्स फॉर इंटरलिंकिंग डिफरेंट टॉपिक्स इफेक्टिवली, देखो ये भी वही है। इंटरलिंकेजेस कब आएंगे, जब पहले तो 1A 1B 2A 2B पढ़ो। आप 1A में यू रीड अ टॉपिक डेमोक्रेसी, दिस टॉपिक विल अगेन रिपीट इन 2A। डेमोक्रेसी यू ऑल्सो विल रीड इन 2B, सॉरी 2A। देखो डेमोक्रेसी अगर मैं बात करूं, वी रीड इन 1A, इंडिया के इलेक्शन हुए तो 1B में भी हो गया, ऑल्सो इन 2A, ठीक है। इनफैक्ट इसको मैं एक्सटेंड कर सकता हूं 2B, कैसे, recent elections are happening in India, there is a change of government, with every change of government there is a continuity and a change in foreign policy, true or not, देखिएगा अगेन लिंक इट। सवाल बन सकता है अब ये सवाल, ऑल्दो है फॉरेन पॉलिसी का, बट इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द रीसेंट डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज। ओके, so interlinkages, number 1, this can only come when you are thorough with topics। आपने चारों टॉपिक्स हर इक्वालिटी अब पढ़ते हो, इक्वालिटी हम 1A में पढ़ते हैं, इक्वालिटी से रिलेटेड इश्यूज वी आल्सो रीड इन 1B, एंड अगेन इक्वालिटी से रिलेटेड ग्लोबल मूवमेंट्स वी आल्सो रीड इन सोशल मूवमेंट्स, राइट, इन 2A। So interlinking when will come when you are done with these topics, and plus you are also fine and you are sorted in current affairs। अच्छे से करंट अफेयर्स पढ़ोगे, फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिस्ट, एक बहुत फेमस मैगजीन है इकोनॉमिस्ट, एवरी ईयर कम्स आउट विद द रैंकिंग्स ऑफ कंट्रीज एज पर देयर डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स। तब वो बोलता है डेमोक्रेसी इन स्लाइड, उससे लिंक कर सकते हैं 1A एंड 2A।
बट दिस इज अगेन अ फंक्शन ऑफ हाउ वेल यू हैव कंप्लीटेड द टॉपिक्स। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूं, आप ये मत सोचो कि बहुत ज्यादा है। अगर आपने कंडेंस करने पे शुरू कर दो काम, ठीक है। इफ यू आर फेसिंग इश्यूज, यू कीप मी इन द लूप। एक बार ये काम आपने कर दिया ना, देखो कोई भी सिस्टम है, अगर सिस्टम गवर्नमेंट की बात कीजिए, अगर गवर्नमेंट का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, उसमें रिफॉर्म लाना बहुत मुश्किल होता है। अपने नोट्स को देखो वैसे ही, अगर नोट्स बहुत बल्कि हैं, बहुत बड़े हैं, साइकोलॉजिकली बहुत प्रेशर होता है। आप मुझे बताना ऑनेस्टली, आप सब लोग जो यहाँ पे हो, हाउ मेनी पेजेस और इन हाउ मेनी बुक्स आर योर पीएसआईआर नोट्स ऑनेस्टली? नोट्स और हैंडआउट्स अलग अलग करके कितना है देखने में? इफ यू आर टू टेक अ पिक्चर ऑफ दैट, हाउ मच इज इट? Raghavendra has 7 registers. Okay. And Raghavendra, I'm pretty sure this excludes the handouts and the recent updates. 7 for Ashu, अभी 7 में टाई चल रही है। और कोई देखते हैं 8 या 10 कॉपीज वाले? चलो ठीक है, भूषण ने थोड़ा सा बढ़ाया भी स्टेक, 8 रजिस्टर्स। हर्ष इज सेइंग कि 3 तो कॉपी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की हैं 800 पन्ने के ऊपर, एक्सीलेंट। गौतम इज 6.5, द मोस्ट इकोनॉमिकल इज गौतम। लक्ष्मी 7 प्लस हैंडआउट्स, ठीक है, ठीक है। नहीं, ऑफ कोर्स आई टोटली नो ये है आपका। अच्छा, आनंदी सिंह 1 येट ऑन, अच्छा ठीक है। सी प्लीज रिमेंबर, ये जो सारी चीजें अगर कंडेंस करोगे आप, एंड इफ यू ब्रिंग दिस डाउन टू 1 और 2 पेपर्स, ओके, 1 कॉपी फॉर पेपर 1 एंड 1 फॉर पेपर 2, साइकोलॉजिकली अच्छा अच्छा लगेगा कि नहीं? और आप ये सोचो, आप उन कॉपीज से अगर वहां फंसते हो, तो जाओ अपने नोट्स के पास फिर से, अच्छा है मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। समझ रहे हो आप? तो दिस इज अगेन गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ लीवे। समझ रहे हो? सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। ये जो लोग कर लेते हैं ना, वो बहुत अच्छा करेंगे। तो अगर आपका सिस्टम, व्हाट आई वाज सेइंग, इफ योर सिस्टम इज स्मॉल एंड एफिशिएंट, दैट इज द वे फॉरवर्ड। अब कोई भी चेंज करने होंगे आपको बहुत आसान लगेगा, अच्छा यार ये तो ऐसे करना है। सेम होता है करंट अफेयर्स में। लोग करंट अफेयर्स में क्या करेंगे, उनके पास प्रॉपर एक लिस्ट होती ही नहीं है टॉपिक्स की। ओके, मैं आप लोग को एक अलग से असाइनमेंट भी दूंगा मोस्ट प्रॉब्ली कल, स्पेशली बिकॉज देखो अभी आपके पास बहुत ज्यादा, यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू एट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आप एक काम करना, जो भी मंथली मैगजीन फॉलो कर रहे थे, ठीक है, उसमें उठाना पॉलिटी, उसमें उठाना आईआर, एंड डू दिस फॉर द लास्ट 12 मंथ्स। और एक अपनी लिस्ट बना के रखो अलग से, सिर्फ लिस्ट बनानी है। यू ओनली हैव टू मेक दैट लिस्ट, ठीक है। और बाद में देखो वो वही क्वेश्चंस घूम घाम के आपके GS2 मेंस में आएंगे, और वहीं से कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपके PSIR में। आपकी लिस्ट अभी ऑफ कोर्स टुडे, वी आर राइट नाउ इन जून, सो मे बी इफ यू हैव द मंथली मैगजीन ऑफ मई तक के लिए कर लेना, जून से मई। सिर्फ आपको टॉपिक्स लिखने हैं, मैं तो ये भी नहीं बोला टॉपिक्स पढ़ने हैं। वॉट एवर मंथली मैगजीन यू आर फॉलोइंग, जस्ट डू इट फॉर दैट। एंड जो जो टॉपिक करते जाओ उस पर टिक लगाते जाओ, एंड देन विद एवरी मंथ कीप ऑन अपडेटिंग इट। इससे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव कोई तरीका ही नहीं है। इफ यू हैव योर लिस्ट सॉर्टेड, आपको बस वो लिस्ट आनी चाहिए, और उस लिस्ट को फिर कंपेयर करना 2024 यूपीएससी मेन से कितने टॉपिक आए। अगर वो टॉपिक बहुत ऑब्सक्योर होगा, किसी भी मैगजीन में नहीं था, तो वो आपके नोट्स में शायद ना हो। बट ऐसे बहुत ही रेयर टॉपिक्स होते हैं हर साल, क्योंकि देखो प्रीलिम्स में बहुत बड़ा एलिमेंट है सरप्राइज का। मेंस में आप सबने देखा होगा, आप सबको ये भी लगता होगा कि काश प्रीलिम्स हो जाए, हम मेंस में तो बहुत अच्छा कर लेंगे। क्योंकि मेंस में बहुत बार सिलेबस ओरिएंटेड है, प्रीवियस क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, things that you read generally they come. So the people who are good in writing, who have made good notes, always want कि बस एक मौका मिल जाए prelims के बाद, and I will just get very good marks, right? So keeping that in mind, so I think you can do that. Methods for interlinking, how to conclude answers positively. अब एक चीज देखो, हर हर आंसर पॉजिटिवली नहीं हो सकता कंक्लूड। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन फासिज्म में है, आप बताओ कैन वी कंक्लूड द क्वेश्चन ऑन फासिज्म पॉजिटिवली? एनीबॉडी बताओ? नहीं। तो द पॉइंट इज, ये जरूरी नहीं है कि सब कुछ पॉजिटिवली करना है, ये किसी ने कहा भी नहीं है। All you have to do, you'll tell the contribution of that ideology, of that thought, of that thinker, its impact on the world. It may be negative or positive, तो ऐसा नहीं है पॉजिटिव ही करना है हमेशा, ठीक है। How to relate it to contemporary events, you can, for example,
व्हेन कोविड हैड अकर्ड, उस समय पता है न्यूज़पेपर में क्या आता था? द स्टेट इज बिकमिंग अ लेवियाथन स्टेट। लेवियाथन टर्म किसने यूज किया? किसकी बुक का नाम है? हॉब्स। कैन यू टेल मी why during COVID was the state compared to a Leviathan? कोविड के समय लेवियाथन स्टेट क्यों बोलते थे हम? एनी आइडिया व्हाई? अब ये वो वही आंसर कर सकते हैं इसने हॉब्स पढ़ा होगा। जिसने अभी जस्ट शुरू किया है, यू विल नॉट बी एबल टू आंसर इट। एनी आइडिया व्हाई? स्टेट ऑफ नेचर, बट और सोचो, हम स्टेट को क्यों कह रहे हैं? दैट इज ट्रू, स्टेट ऑफ नेचर इज वॉर लाइक कंडीशन, बट व्हाई आर वी कंपेयरिंग द स्टेट टू अ लेवियाथन? वेरी गुड पॉइंट लक्ष्मी की। द पावर्स ऑफ स्टेट हैव इंक्रीज्ड अ लॉट। कोविड में देयर आर सो मेनी रेस्ट्रिक्शंस, trade is not happening, boundaries are closed, and in a Leviathan state there is a huge threat to the individual life, right? तो अब ये कनेक्शन हम बना सकते थे। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं इकोनॉमी की, आप सबने पढ़ा है, प्रीलिम्स में सबने पढ़ा है, वेल्थ इनइक्वालिटी। 10% or 1% of the population having more than 50% of resources. Just tell me yes or no. How can we link wealth inequality to PSIR? बताओ कौन सा स्कूल ऑफ थॉट बोलेगा ये? Which school of thought will talk about this? Anything that you can link it? Yes, very good, Anand. Marxist. मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट या मार्क्सिस्ट थिंकर्स हैं, वो यही तो बोलते हैं, द पीपल, स्मॉल सेक्शन ऑफ पीपल हैविंग ऑल द वेल्थ। राइट? तो यही एक मेजर पॉइंट है। अब इसी को और थिंकर्स ने बोला है और एक्सपैंड किया है। आपने अगर इमैनुअल वॉलरस्टीन को सुना हो, रॉबर्ट कॉक्स, अदर ग्रामशियन थिंकर्स, उन्होंने इसी चीज को और एक्सपैंड किया है। countries are becoming developed, some countries are becoming poor, poor countries becoming poorer, richer countries getting rich. So this again you will get better with time and thinking. जितना सोचोगे उतना अच्छा बनेगा आंसर अपना। राइट? एंड आई थिंक द लास्ट फ्यू क्वेश्चंस दैट वर देयर, हाँ ये लास्ट के कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी हैं। ओवरकमिंग द फियर ऑफ राइटिंग आंसर। देखिए फियर जो भी है, कैसा भी फियर है आपका, यू हैव टू फेस द फियर। देखिए राइट, अ वेरी बिग पॉलिटिकल स्कॉलर हैज सेड द डर के आगे जीत है। ट्रू और फॉल्स? किसी स्कॉलर ने कहा है ये डर के आगे जीत है। So overcoming the fear of answer writing, you start with one answer, and देखो fear क्यों है? Because either you want your answer to be perfect or you feel inadequate. But remember, कोई भी आंसर शुरू करेगा, if you write not just this, ऐसे लिखोगे तो भी डर लगता है, इंटरव्यू पहली बार दोगे तो डर लगता है, ठीक है? बट आफ्टर अ पॉइंट यू विल फील कॉन्फिडेंट, ठीक है, हो जाता है। तो शुरू करो, ओके? आफ्टर राइटिंग 5 to 10 आंसर्स यू विल फील बेटर, आफ्टर राइटिंग 20 30 आंसर्स यू विल फील बेटर। बट मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अपने आंसर को जज करना आफ्टर 50 to 100 आंसर्स। पहले बेंचमार्क रख लो कि पहले 50 से 100 आंसर्स अगर मेरे उतने अच्छे नहीं भी हुए, कोई इशू नहीं है। ये ठीक है, पहले समझ गए इस चीज को। नेक्स्ट, okay, somebody mentioned that issues in understanding political ideologies using Andrew Haywood's work, ठीक है? अब political ideology is again a very 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 important topic and this book is very good. अगर आपके पास टाइम है और अगर आप पढ़ पा रहे हो तो पढ़ लो, ठीक है? फायदा ही करेगी। एंड्रू हेवुड की राइटिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से उन्होंने हर चीज एक्सप्लेन कर रखी है, राइट? अब बाकी लोग सोचेंगे अरे यार एक नई बुक दिख गई, इसको पढ़ लेते हैं, ठीक? तो दिस इज ओनली वैलिड फॉर समबडी हु इज स्ट्रगलिंग विद दिस टॉपिक। अगर आपको टॉपिक समझ में आ रहा है, समझने का क्या मतलब है, अगर उससे प्रीवियस से क्वेश्चन कर पा रहे हो तो ठीक है ना,
क्या दिक्कत है? अगर नहीं आ रहा है तो फिर बुक के पीछे भागो। इसीलिए आई नेवर जनरली विल से कि डायरेक्टली स्टार्ट विद बुक्स। अगर पढ़ना ही है तो एडिटोरियल पढ़ो। एडिटोरियल में बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पे, पॉलिटी पे, आईआर पे। आपका फॉर्डर अपने आप बनेगा। तो इवन इफ यू राइट मेंस दिस ईयर और यू राइट मेंस नेक्स्ट ईयर, वन थिंग आई विल से, बस हर दिन 15 मिनट देने हैं, खुद से पढ़ो पहली बात तो। इफ यू आर अ फैन ऑफ वॉचिंग एनालिसिस एंड कमेंट्रीज, अच्छी बात है, बाद में देखो। बट एक बार खुद से पढ़ोगे तो इवन इफ योर अंडरस्टैंडिंग इज लिमिटेड, कोई बात नहीं। अगर आप बाद में किसी कमेंट्री को देखते हो, आपको पसंद है, देयर आर मेनी चैनल्स हु डू दैट, फाइन। बट खुद की रीडिंग कभी मत छोड़ना, राइट? इन पॉल साइंस यू नो देयर इज अ टेक्सचुअलिस्ट अप्रोच एंड अ कॉन्टेक्सचुअलिस्ट अप्रोच। किसी ने पढ़ा है इसको? अब इसमें क्या होता है, अगर मैं कोई टॉपिक खुद से पढ़ूंगा, माई अंडरस्टैंडिंग विल बी डिफरेंट वर्सेस somebody else explaining me the same topic. Why is that? Because the language is different. The language has not advanced itself to such a level that you can understand everything, है ना? तो ये चीज हो गई। अब ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, somebody दो तीन लोग का पॉइंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक एंड हाउ टू एस्टैब्लिश द सिस्टम फॉर इट। देखो, दो दो तीन क्षेत्र हैं। पहला क्या है, पहले तो बहुत लोग टेस्ट देते हैं बिना पढ़े। पहला पॉइंट है, पढ़ के टेस्ट दो। अगर पढ़ के टेस्ट दिया है, फिर कोई टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करी, उस पर कोई फीडबैक आया, उस पर काम करो। अब एक पॉइंट ये भी होता है कि सर हम, मान लो हमने पहले टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी है, अभी ज्वाइन करने का मन नहीं है, बट हमें लिखने का मन है, तो क्या कर सकते हैं? इन बिटवीन आई विल ऑल्सो बी शेयरिंग सम ऑफ द कॉपीज जो अच्छी मुझे मिल रही हैं, कुछ टॉपर कॉपीज हैं। तो एक जनरल फ्रेमवर्क हमें पता चल जाएगा, ठीक है, कि क्या होना चाहिए हमारे आंसर्स में। तो इवन इफ यू आर नॉट एबल टू गेट एन इमीडिएट फीडबैक, यू शुड ऑल्सो सेल्फ इवेलुएट, क्या मेरे नोट्स के पॉइंट्स हैं मेरे आंसर में। ये बहुत बेसिक सी चीज है, अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इंप्रूव कर लेंगे, हाँ है ना? तो ये भी कर सकते हो। एक और पॉइंट है, स्ट्रैटेजीज फॉर इंक्रीजिंग थिंकिंग स्पीड। ये किस किस को प्रॉब्लम आती है आंसर राइटिंग में? दैट यू थिंक, देखो थिंकिंग से अरेंजिंग भी ठीक है, दैट इज ऑल्सो फेयर पॉइंट। सनी, आई जस्ट, दिस विल बी पोस्टेड ऑन यूट्यूब ऑल्सो इफ somebody did a peer, ठीक है, बट आई ऑल्सो टेक योर डाउट अलग से भी, ठीक है। अब देखो फिर से लिखते हैं, एक बार समझते हैं प्रॉब्लम है क्या, शायद उसके बाद आप इसको समझ जाओ प्रॉब्लम को क्या सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, राइट? देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत लोग जब आंसर राइटिंग शुरू करोगे, यू विल फाइंड एक क्वेश्चन लिखने में कभी कभी 30 मिनट लगते हैं। कि किसी को ऐसा हुआ है? इट टेक्स 30 मिनट्स टू राइट, होता है ना? फिर आपको लगता है अरे भाई 7 मिनट या 10 मिनट में कौन नहीं लिख पाएगा, मेरे में कोई दिक्कत है, मैं ही अच्छा नहीं हूं, मैं अच्छी नहीं हूं, एंड देन यू फील वेरी डीमोटिवेटेड। बट आई विल टेल यू दिस इज वेरी नॉर्मल, स्टार्टिंग में लोग को टाइम लगता है। अब देखो, अब हम ब्रेक डाउन करेंगे 30 मिनट्स क्यों लग रहे हैं, वाई। यू ऑल्सो हेल्प मी विद योर इश्यूज। नंबर वन, कंटेंट याद नहीं है, ओके? यू डोंट रिमेंबर द कंटेंट। अगर याद नहीं है तो ऑफकोर्स जल्दी नहीं लिख पाओगे। कुछ कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं, अब ये भी नहीं पता इंट्रोड्यूस कैसे करें, 100 बार सोच रहे हो अच्छा इंट्रोडक्शन कैसे होगा। बॉडी में एक पॉइंट याद आया, पर वो तो लास्ट में लिखना था, बट यू यू ऑल्सो डोंट नो हाउ टू स्ट्रक्चर एंड अरेंज योर पॉइंट्स। अगर पॉइंट्स याद आ भी रहे हैं तो अच्छी कनेक्टिंग इंग्लिश नहीं बन पा रही, फिर से लग रहा है धीमे से अपने नोट्स देख लेते हैं, वहीं से इंग्लिश देखेंगे। इजंट इट ट्रू? नो, ये तो होता है ना। देखो चलो, आप ही में से कोई लिख रहा है कि इनिशियली लगते थे, अब 12 मिनट लग रहे हैं, बिल्कुल सही, अब और कम लगेंगे उसके बाद। 12 मिनट भी ज्यादा है आपके 10 मार्कर के लिए, ठीक है। सो अगेन रिमेंबर, अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट लूज होप, डोंट बी डिमोटिवेटेड। ये सबके साथ होता है ना? हमें क्या करना है,
एक पर, हाँ, एक बार आंसर लिख लिया एक टॉपिक पे, उसी सेम टॉपिक पे आप आंसर फिर से लिखोगे, आधा टाइम लगेगा, ये देख लेना, बिकॉज नाउ यू हैव डन दिस वर्क। ओके, सो दोज ऑफ यू, अगर आंसर राइटिंग में डर लग रहा है, तो सबसे पहले टेक्निक हमारी क्या है? ब्रेनस्टॉर्म। आप क्वेश्चन मत लिखो प्रॉपर, आप उसमें सोचो मैं क्या क्या लिख सकता हूं। इट विल लोअर डाउन योर टाइम, एंड दिस एक्सरसाइज यू कैन डू फॉर योर प्रीवियस क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल पावर पे है, थ्योरीज ऑफ पावर पे है, ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ क्वेश्चन ऑन न्यू लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट, जो हम बात कर रहे थे, इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, क्या क्या चीजें लाएंगे, अब आपको अगर बेसिक चीजें याद है ना, अब ये रिट्रीव करने में इशू नहीं आएगा, बिकॉज यू हैव थॉट थ्रू इट। टाइम ज्यादा वहां लगता है वो क्वेश्चन नया हो या आपने कभी सोचा नहीं हो उसके बारे में, है ना? तो अगर वैसे ही सेम चीज है, अगर आप अपने नोट्स पढ़ रहे हो अच्छे से, अगर आप ब्रेन कर रहे हो, तो स्लोली एंड स्टेडली योर आंसर राइटिंग टाइम विल रिड्यूस। एंड आंसर राइटिंग जब और अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, वो टाइम कब होगा। बट ये चीज करनी है, और यही एक ऐसी चीज है वेयर मेनी ऑफ अस समटाइम्स डू नॉट पुट मच एफर्ट्स, आइदर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गाइडेंस और आइदर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मोटिवेशन। फिर लगता है यार इसमें इतना, और ये बहुत टायरिंग और बोरिंग प्रोसेस है। शुरू में नो बडी रियली लाइक्स टू वेट फॉर वन आंसर, इतना टाइम करो, फिर अच्छी राइटिंग भी नहीं है, अच्छे से वर्ड्स नहीं बने हैं, यू डू नॉट गेट गुड फीडबैक, एंड देन यू फील वेरी डिमोटिवेटेड। ट्रू और फॉल्स? फिर लगता है यार इससे अच्छा तो कुछ और ही कर ले। बट दिस इज वन बैटल दैट यू यू हैव टू फाइट। प्रीलिम्स का जो सबसे टफ और इंपॉर्टेंट बैटल है वो कौन सा है? मार्क्स लाने मेंस में, ये वो बैटल है जो आपको जीतना पड़ेगा, एंड यू विल गो वन स्टेप एट अ टाइम। फाइन, सो दीज वर सम ऑफ द अदर डाउट्स। एक लास्ट डाउट था जिसको मैं कह सकता हूँ सिलेबस और सब्जेक्ट को इंटीग्रेट करेंगे कैसे, ठीक है। अब ये था कि हाउ डिटेल्ड द आईआर सेक्शन शुड बी कंपेयर टू जीएस टू आईआर। अब देखो जीएस टू आईआर में हमें पता है सिर्फ 4 क्वेश्चन आएंगे, एंड समटाइम्स दे कैन नॉट गो इनटू अ लॉट ऑफ डेप्थ, राइट। पीएसआईआर में ऑफ कोर्स मेरे को 20 मार्कर भी मिलेंगे, 15 भी मिलेंगे, 10 मार्कर भी मिलेंगे, plus the entire paper 2 will be heavily dependent on it, so the level of detailing has to be higher here. अब यहां पे detailing is more in terms of also more specific commentaries, use of more keywords, schools of thought। आप बात करोगे रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, मार्क्सिस्ट, ठीक है, कौन कैसे अप्रोच कर रहा है किस पार्ट को। अगर क्वेश्चन डब्ल्यू पे है, डब्ल्यू पे है, यहां पे भी आता है, यू विल हैव अ वे ऑफ इट। यहां पे मोर जनरल पॉइंट्स यू कैन ऑल्सो डू। तो ऑफ कोर्स प्योरली स्पीकिंग पीएसआईआर विल रिक्वायर मोर लेवल ऑफ डेप्थ। जीएस2 में अपने को कोल्ड वॉर पे ज्यादा सवाल नहीं मिलेंगे, बट इसमें जरूर मिलेंगे पीएसआईआर के आईआर सेक्शन में, राइट। तो जहां पे जो चीज रेलेवेंट है, एंड हाउ वुड यू नो दिस, दोनों के प्रीवियस क्वेश्चन फिर से देखो। हैव यू सीन द जीएस2 क्वेश्चंस ऑफ आईआर फॉर 2023 पेपर? नहीं देखा है तो देखो, आप सबको वन एडवाइस फ्रॉम माय साइड विल बी, फर्स्ट स्पेंड सम टाइम ऑन बोथ प्रीवियस क्वेश्चंस आराम से। फॉर प्रीलिम्स यू डू इट अ लॉट, नाउ यू शुड आल्सो डू इट फॉर योर जीएस एज वेल एज ऑप्शनल, ठीक है। ऑप्शनल इज नेवर ऑप्शनल, ऑप्शनल में तो हमेशा ही करना है ये चीज को। इसको अच्छे से कर लोगे तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू हैव टू डू विल बी सॉर्टेड। नहीं देखो, पीएसआईआर में भी कोई और डायमेंशन तो पिक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट डेप्थ इन पीएसआईआर। दिस अगेन यू विल देखो, ये क्वेश्चन का बहुत अच्छा एक आंसर वही है, फिर से प्रीवियस क्वेश्चन देखो, यू विल योर आंसर क्वेश्चन आप सीधे समझ जाओगे, है ना। बाय एंड लार्ज यस, वी कैन अंडरस्टैंड, बट दोनों की अपनी स्पेसिफिक डिमांड्स हैं। इसीलिए अगर आपने ये अच्छे कर रखा है ना, मान लो अगर आपने इंडिया अफगानिस्तान, इंडिया यूएई, इंडिया सऊदी कुछ भी अच्छे से पढ़ा, मेरे हिसाब से, ठीक है, अच्छे से पढ़ा मतलब समझ के सारे डेप्थ डिटेल क्या है, तो उससे जीएस2 का भी आंसर अच्छे से लिख पाओगे, पीएसआईआर का भी लिख पाओगे। पीएसआईआर में ऑफ कोर्स यू कैन ऐड सम इंपॉर्टेंट कमेंट्रीज,
उसकी भी एक टेक्निक है कि कैसे नोट्स को स्ट्रक्चर करोगे, आगे जाके कैसे चीजें कंडेंस करोगे, ठीक है। तो अगेन इफ आई वांट टू समराइज ऑल दीज थिंग्स, आई थिंक हमने देख लिया। क्लोजिंग रिमार्क्स भी देख लेते हैं। आई थिंक आई वांटेड टू हैव दिस सेशन टिल 9, थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ होगा, बट आई थिंक इट इज ऑफ वैल्यू टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो क्लोजिंग रिमार्क्स में वही है, कैसे पढ़ रहे हो इज इक्वली इंपॉर्टेंट, हाउ यू रीड, ओके, व्हाट यू रीड एंड हाउ यू कंसोलिडेट इट। कंसोलिडेशन ऑप्शनल में इतना जरूरी है, अगर नहीं करोगे दिस विल अगेन अपीयर टू बी अ मॉन्स्टर, डर लगेगा फिर से आपको, ठीक है। और डर ही मेन चीज है जो हमें दूर रखती है, डरना नहीं है इसलिए अपने को बहुत ज्यादा। कंसोलिडेशन पे काम करो शुरू से ही, एंड इन दीज मंथ्स, कमिंग मंथ्स, आई विल मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू एंश्योर कि कंसोलिडेशन आपका अच्छा हो। क्योंकि देखो अल्टीमेटली अगर आपके नोट्स अच्छे हैं, अच्छे से चीजें कवर कर रखी हैं, यू विल डेफिनेटली फील कॉन्फिडेंट, है ना। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट। अब आप में से कुछ ऐसे लोग भी होंगे who would have not been able to ask your doubts, ठीक है। तो आप मेरे को इंडिविजुअली भी ऑन टेलीग्राम यू कैन मेंशन। देखो अनंत, आपका जो डाउट है इसमें मैं एक बात बोलूंगा आपको, बेसिकली व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड। देखो क्या है कि आपने फॉर एग्जांपल, एक सेकंड रुक जाओ, क्या हो रहा है। ओके, कैन यू टेल मी योर नोट्स आर फ्रॉम विच ईयर अनंत? अलग से भी बात कर लेंगे नहीं तो। देखो फॉर सम स्टैटिक टॉपिक्स इट विल बी फाइन, बट अगेन आई टोल्ड यू, आपके बेसिक्स अगर अच्छे हैं ग्रेजुएशन में, तो ऑफ कोर्स यू कैन नाउ अपडेट योर नोट्स। 1B में और 2 में जहां जहां अपडेट करने हैं, जो जो टॉपिक्स मिसिंग है उसको अपडेट कर लो। कोई ऐसा टॉपिक मिसिंग है जो, मान लो, इफ यू नीड माई हेल्प, यू कैन ऑल्सो टेल मी। बट सिंस यू ऑलरेडी हैव अ गुड बेस because of your graduation, you can do that, right? So I don't think that should be a problem. अपडेट कहां से करें सनी, अभी हमने बात कर ली है इस पे। बेसिकली द अपडेशन पार्ट आई जस्ट सेड कि पिछले एक साल के जो करंट अफेयर्स हैं, बोथ फॉर GS2, दैट इज द पॉलिटी पार्ट ऑफ इट, IR पार्ट ऑफ इट, उसके अपडेट्स हमें ऐड करने हैं। एंड जस्ट गो बैक टू द रीसेंट पेपर्स, 2022 PSIR का, GS2 का, 2023 का, देखो आराम से बैठ के। और फिर जो भी अच्छी मंथली मैगजीन आप फॉलो करते हो वहां से लिस्ट बनाओ टॉपिक्स की। सोर्स में मैं दोनों चीज बता चुका हूँ। आई हैव आल्सो टोल्ड न्यूज़पेपर, आई हैव आल्सो टोल्ड ये कोई भी मंथली मैगजीन जो आप पढ़ रहे हो उसमें ये सारे टॉपिक्स रहते हैं, राइट। एंड सेकंड इज, एक भी कोई भी न्यूज़पेपर, ठीक है, अगर एक भी न्यूज़पेपर करोगे दैट इज इनफ। उसके बियॉन्ड थर्ड लेवल क्या हो सकता है, इफ देयर इज एनी गुड न्यू रीसेंट टेस्ट सीरीज जिसमें बड़े अच्छे मॉडल आंसर हो, अगर उसका वैल्यू एडिशन अच्छा है, अगेन अभी मार्केट में बहुत कुछ सोर्सेज में यू मे नॉट सी अ ग्रेट लेवल ऑफ वैल्यू एडिशन, ठीक है, वही पुराना कंटेंट अगर रिपीट हो रहा हो तो आपके काम का नहीं है। अगर अच्छा नया वैल्यू एडिशन है तो कीप एन आई ऑन दैट एज वेल, वो भी देख सकते हो, उसमें भी फायदा ही होगा आपका। तो अगेन यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं, इसको आप करके देखो, अगेन यू विल फील अ ह्यूज लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, फाइन। इसीलिए कुछ आप लोग देखोगे ना, लेट्स से अगर कोई बिगिनर है जो पहली बार मेंस लिखेगा, जो करेगा ना, व्हाट दे विल डू, दे विल जस्ट फोकस ऑन देयर नोट्स। वो एडिटोरियल्स पिछले 5-6 महीने के बहुत अच्छे से करके जाएंगे। और तीसरा, वो प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएंगे अच्छे से। इफ यू हैव लेस टाइम, और ज्यादा टाइम है, इसी में एक टेस्ट सीरीज ऐड कर लो अगर और टाइम है आपके पास। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो गलतियां कर रहे हो प्रीवियस क्वेश्चंस में, टेस्ट सीरीज में, दिस शुड बी इनकॉर्पोरेटेड एज अ फीडबैक। फीडबैक वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। ठीक है, सो आई थिंक दीज आर द फ्यू थिंग्स आई वांटेड टू टेल यू। लक्ष्मी, यस आई विल ट्राई टू डू दैट, थोड़ा कंडेंसिंग और उस वाले पे मैं देखता हूँ अपने साइड से मैं क्या कर सकता हूँ और बेटर आप लोग के लिए। क्योंकि इसमें भी मुझे लगता है बहुत वैसे इंटरवेंशन कभी कभार इंडिविजुअल भी चाहिए होता है, क्योंकि पीपल हैव डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग नोट्स।
तो उसमें भी we'll see what can be done best. Okay. Other than that, we'll also try to keep this a more of a weekly exercise. जहाँ पे हम बस I think I'll just take a weekly feedback and progress from all of you. कैसा चल रहा है without any specific targets in mind also. ठीक है. तो मे बी देयर ऑल्सो यू कैन लेट कुछ डाउट्स पूछ सकते हो, कोई आर्टिकल समझ में नहीं आ रहा, कोई समराइज कैसे करना है। तो इस तरह का भी आई डोंट थिंक देयर आर मेनी मेनी सच मैकेनिज्म्स अवेलेबल एज ऑफ नाउ, सो वो भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है। अदर देन दैट, हाउ मेनी ऑफ यू आर वेटिंग फॉर अभी मेंस का? हाउ मेनी ऑफ यू होपफुल? ओके, सो अगेन द बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, बट स्टिल एक चीज ध्यान रखना, अभी कुछ कुछ दिन थोड़ा सा माइंड हर जगह से हटा के देखो। 50% चांस है, कितनी भी चांस है, 50% चांस 100 भी हो सकती है। अभी के लिए ज्यादा कोशिश करो या ज्यादा सोचो दैट वी हैव डायरेक्टली हमारे सामने एग्जाम है, ऐसे सोचो, स्टेक्स हैं। राइट। दूसरा, सीसैट फैक्टर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स क्लियर, वो नो बडी कैन इजिली टेल। बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो ना कभी टेलीग्राम यूज करते हैं, वो कोई पोल यूज नहीं करेंगे। तो इंडिया में अगेन कोई प्रिडिक्ट कर पाना कौन कितना कट ऑफ होगा बहुत मुश्किल होगा, सही बताऊं। तो अगर आपको लग रहा है ठीक ठाक रेंज में हो, तो मेरे हिसाब से अभी कुछ ही दिन बचेंगे, राइट, हार्डली 10 डेज। 10 डेज पूरा पॉल साइंस को अच्छे से दे दो। इफ यू आर ऑन द राइट साइड, एक्सीलेंट, यू ऑलरेडी हैव हेड स्टार्ट, क्योंकि बहुत लोग ये नहीं करेंगे। दूसरा ये भी है कि इस समय वर्ल्ड कप चल रहा है, तो अगेन मेनी मेनी पीपल विल बी वॉचिंग द मैचेस, या थोड़ा एंग्जाइटी भी होगी, होगा नहीं होगा, आप कोशिश करो यू मेक द बेस्ट यूज ऑफ द टाइम। ठीक है। विद दैट सेड, आई विल नाउ टेक योर लीव। इंडिविजुअल और भी आप चाहते हो और डिटेल में अपने क्वेश्चंस आंसर करना, यू कैन जस्ट ड्रॉप मी मैसेज ऑन टेलीग्राम। ठीक है, बाकी तो आई विल अपलोड दिस सेशन एज सून एज इट इज डन रिकॉर्डेड। ठीक है, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। कोई भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन सब देखो, कुछ कुछ आई थिंक और भी कोई इश्यूज हैं तो बताना मुझे। अभी तो बिकॉज वी जस्ट स्टार्टेड टू पोस्ट, तो अभी और रेगुलरिटी आएगी। तो अगेन ऑन दिस ग्रुप यूल सी अ लॉट ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, तो पीएसआर को कोशिश करेंगे और ज्यादा आसान बनाया जाए आपके लिए। ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय। वेलकम वेलकम, थैंक यू फॉर द फीडबैक, आई लीव नाउ।